Good morning students, welcome back to my YouTube channel Science Classes. This is Rajesh, your biology teacher, and today we are going to discuss about the mechanism of respiration which is given in your chapter Life Process class 10th. Students, in the previous video we have discussed about the human respiratory system, what are the different parts of human respiratory system and how respiratory gases are transported in our body, how exhalation and how inhalation takes place in our body. So, students, in the last video we have already studied about the three steps of respiration, three stages of respiration. First one is inhalation. As we know that oxygen is taken inside the body from our atmosphere, and in the process of exhalation carbon dioxide is removed outside the body. So there are three important steps which are found in the process of respiration, and exchange of gases takes place in the alveoli as we have discussed in the last video. Students, in this video we are going to discuss about the mechanism of respiration. What are the reasons behind the inspiration and expiration or inhalation and exhalation? There are certain important factors which are responsible for inhalation and exhalation of air. So let's start it. In respiration, there is three steps as we have discussed in the last video, and I just told you that the first step of respiration is known as inhalation, which is also known as inspiration. It is also known as inspiration. The second step is exchange of gases. The second stage is exchange of gases, and we have discussed in the last video what are the process of transportation of gases, what are the process of exchange of gases, and the third step is known as exhalation, or it is also known as expiration. तो स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करेंगे रिस्पायरेशन की तो हम लोग ये थ्री स्टेप को कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि यही थ्री स्टेप हमारे बॉडी के अंदर होता है. द फर्स्ट स्टेप इज नोन एज इनहेलेशन, एंड आई हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो कि व्हाट इज इनहेलेशन, एंड यू हैव studied in the lower classes, okay. And the second one is exchange of gases. In our body there is a certain organ which is known as alveoli, and in alveoli there is the exchange of gases takes place. Oxygen just diffused into the blood circulation, and oxygen is carried with the help of hemoglobin, and in the same pathway carbon dioxide which is formed inside the cells which are transported via the blood circulation, and it is also diffused into the alveoli, and from alveoli carbon dioxide is removed outside the body. So in the case of exchange of gases we have already discussed, and in exhalation, as you know, removal of carbon dioxide from the body is known as exhalation. Then what are the process by which inhalation and exhalation takes place? ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे हमारे बॉडी के अंदर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता है? इस प्रोसेस को हम लोग समझेंगे. तो बच्चों, इस प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग एक इम्पॉर्टेंट एक रफ स्केच तैयार करते हैं और उस
रफ स्केच से हम लोग समझेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर इनहेलेशन का प्रोसेस और एक्सहेलेशन का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग इनहेलेशन प्रोसेस को समझेंगे कि ये इनहेलेशन का प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर कैसे होता है। बच्चों, ये एक रफ डायग्राम है, एक रफ स्केच है जिससे आप इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। बच्चों, एज यू नो दैट आवर लंग्स आर सिचुएटेड इन ए closed cage like structure, and that cage like structure is known as rib cage, and we know that there are 12 pair of ribs which are present in the rib cage, and the base of the rib cage is known as diaphragm, and diaphragm is a thin muscular sheet which helps in contraction and relaxation. Students, as we know that diaphragm is a muscles, and the main function of muscles is contraction and relaxation. So in this structure there are some important factors which are responsible for inhalation or inspiration of oxygen from atmosphere to inside the body. Students, in this process, first of all, diaphragm goes downwards. स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस प्रोसेस के लिए डायफ्राम डाउनवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी ये जो मसल सीट है दैट इज नोन एज डायफ्राम, ये कॉन्ट्रैक्ट करके कहाँ पे आता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करके बच्चों ये नीचे की ओर आता है। व्हेन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स डाउनवर्ड्स, व्हेन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स डाउनवर्ड्स, this is diaphragm, okay, in contract position, in contraction, and this diaphragm in relaxation. Okay, यहां पे जो डायफ्राम आप देख रहे हो बच्चों, दिस इज द डोम शेप्ड स्ट्रक्चर इन रिलैक्सेशन। इन रिलैक्सेशन द डायफ्राम जस्ट लाइक ए डोम शेप्ड, एंड व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स डाउनवर्ड्स इट इज फाउंड जस्ट लाइक ए फ्लैटेंड सरफेस। ओके, तो बच्चों डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, तो बच्चों डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से रिब केज के अंदर का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। व्हेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम टेक्स प्लेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन वॉल्यूम ऑफ रिब केज इंक्रीजेस। बच्चों, इस रिब केज में भी, हमारे बॉडी के अंदर जो रिब केज है, इस रिब केज के अंदर भी, इस रिब केज के अंदर भी मसल्स पाए जाते हैं, एंड दैट मसल्स इज नोन एज इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल्स। तो बच्चों हमारे चेस्ट कैविटी में, हमारे रिब केज के अंदर इंटरकोस्टल मसल्स भी पाए जाते हैं। In our rib cage there are 12 pair of ribs present, and each and every ribs are connected with each other by intercostal muscles. Okay, so in our body, in our rib cage, costal muscles and the diaphragm contracts together. बच्चों हमारे रिब केज के अंदर इंटरकोस्टल मसल्स पाए जाते हैं, दैट इंटरकोस्टल मसल्स आल्सो कॉन्ट्रैक्ट लेटरली। तो जब ये इंटरकोस्टल मसल्स लेटरली कॉन्ट्रैक्ट होंगे बच्चों, लेटरली का मतलब साइडवेज है ना, लेटरली का मतलब क्या होगा, साइड में। जैसे ये हमारा रिब केज है और रिब केज के जो मसल्स हैं इंटरकोस्टल मसल्स, तो ये इंटरकोस्टल मसल्स जो है लेटरली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किनारे की ओर। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और डायफ्राम जो है नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट करेगा,
तो रिब केज के अंदर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे व्हेन diaphragm and coastal muscles, when diaphragm and coastal muscles contracts in downward and lateral direction, when diaphragm and coastal muscles contract in downward direction and lateral direction, resulting into results in increases of volume of rib cage, increases of volume of rib cage। ठीक है, when diaphragm and coastal muscles contract in downward and lateral direction results in increases of volume of rib cage। तो बच्चों जब भी डायफ्राम और कोस्टल मसल्स, ये डायफ्राम जो है नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और जब भी ये नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट होगा और कोस्टल मसल्स लेटरली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ रिब केज इंक्रीज होगा। ठीक, दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा जब, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा बच्चों? जब हमारे रिब केज का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एयर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तो आप याद रखोगे व्हेनेवर वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस। तो यहां हम लोग लिखेंगे प्रेशर ऑफ रिब केज, प्रेशर ऑफ रिब केज। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, सेकेंड पॉइंट क्या होगा? प्रेशर ऑफ रिब केज डिक्रीजेस, है ना। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी डायफ्राम नीचे की ओर डाउनवर्ड होगा और कोस्टल मसल्स लेटरली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और डायफ्राम नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीजेस। When diaphragm and coastal muscles contracts in downward and lateral direction results in increases of volume of rib cage. After that, pressure of rib cage decreases. तो इसके अंदर का जो एयर प्रेशर है बच्चों वो क्या होगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि एयर कैसे मूव करता है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ लो प्रेशर है रिब केज में और बाहर हाई प्रेशर है, तो हमेशा एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है। तो यहां हम लोग लिख देंगे, तो हम लोग यहां लिख देंगे एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसके कारण क्या होगा? जब एयर मूव्स होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, बाहर क्या है? हाई प्रेशर, अंदर क्या है? लो प्रेशर। तो एयर क्या होगा? एयर इस नॉस्ट्रिल से होते हुए ट्रैकिया में और अल्टीमेटली इस लंग्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाता है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे चेस्ट एक्सपेंड्स। जब एयर हमारे बॉडी में इंटर करता है तो हमारा चेस्ट क्या होता है? एक्सपेंड होता है, चेस्ट फूलता है। ठीक है, चेस्ट एक्सपेंड्स ड्यू टू इनहेलेशन। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए बच्चों कि मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म यही है कि सबसे पहले डायफ्राम जो कि डोम शेप्ड होता है, यह
डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इसके साथ साथ जो कोस्टल मसल्स पाए जाते हैं हमारे रिब्स के अंदर, हमारे रिब केज के अंदर, ये लेटरली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब लेटरली कॉन्ट्रैक्ट होगा बच्चों तो रिब केज का वॉल्यूम क्या होगा, लेटरली इंक्रीज होगा और डाउनवर्ड इंक्रीज होगा। तो ये पूरा का पूरा वॉल्यूम जो है इसका इंक्रीज हो जाएगा। और बच्चों जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड चेस्ट एक्सपेंड्स। तो जब एयर इस लंग्स के अंदर हवा भरेगी, जब एयर इसके अंदर तेजी से आएगा तो लंग्स फूलेगा और उसके कारण हमारा जो चेस्ट है वो भी एक्सपेंड होगा। ठीक, तो बच्चों अब बात करेंगे हम लोग एक्सेलेशन का। तो एक्सेलेशन में क्या होता है, एक्सेलेशन एज यू नो दैट एक्सेलेशन इज द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द बॉडी। ओके, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द बॉडी। तो ये कैसे होगा इसको हम लोग देखेंगे। इसका ठीक अपोजिट होता है, इसका पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, एक्सेलेशन इज द पैसिव प्रोसेस। तो बच्चों इसमें क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट प्रोसेस होगा। प्रोसेस क्या हो जाएगा, जो डायफ्राम नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट किया था बच्चों, अब वो रिलैक्स पोजीशन में आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको रिलैक्स पोजीशन में कर दें। तो कॉन्ट्रैक्शन जब कर रहा था डायफ्राम तो वो नीचे की ओर आया था, अब ये डायफ्राम क्या होगा, रिलैक्स पोजीशन में होगा, और जब रिलैक्स पोजीशन में होगा तो ये डोम शेप्ड में हो जाएगा। ठीक है, गुंबद के आकार का। अब बताओ ये रिलैक्सेशन पोजीशन में आ गया बच्चों, तो रिलैक्सेशन पोजीशन में आ गया तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम तो इंक्रीज कर जाएगा ना। तो रिब केज का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, हमारा वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, वो तो डिक्रीज हो जाएगा ना। तो पहले बढ़ा था वॉल्यूम, अब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा, जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर अल्टीमेटली बढ़ जाएगा ना। तो इसके अंदर प्रेशर जो है एयर का वो बढ़ जाता है। तो यहाँ हम लोग ठीक कर देंगे, क्या होगा, अब रिब केज भी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लेटरली, अब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस रिलैक्स होगा। तो इसको हम लोग रिलैक्सेशन को दिखाते हैं यहाँ पे, है ना। तो रिब केज जो पहले रिब केज के अंदर जो मसल्स था, इस रिब केज के अंदर जो मसल्स था अब वो रिलैक्स करेंगे, और डाउन ये डायफ्राम भी रिलैक्स कर रहा है। तो क्या होगा बच्चों, व्हेन डायफ्राम एंड कोस्टल मसल्स रिलैक्स, अब यहाँ चेंज कर देंगे, व्हेन डायफ्राम एंड कोस्टल मसल्स रिलैक्सेस, इसको फिर से लिख देते हैं। when diaphragm and coastal muscles, when diaphragm and coastal muscles get relaxed, okay, results in decreases of volume of rib cage। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, जब डायफ्राम और कोस्टल मसल्स जो है वो रिलैक्स करेंगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, रिब केज का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, और उसका अपोजिट प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। एयर प्रेशर increases in rib cage, और जब प्रेशर क्या होगा यहाँ हाई हो जाएगा, इंक्रीज होगा,
तो एयर हमेशा मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ से एयर जो है बाहर की ओर रिलीज हो जाएगा। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब एयर मूव होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो क्या हो जाएगा फोर्थ पॉइंट, चेस्ट गेट रिलैक्स। चेस्ट गेट रिलैक्स and does not expand। ठीक है, चेस्ट क्या होगा, वो रिलैक्स करता है, इसका मतलब क्या हुआ, डज नॉट एक्सपेंड, वो फैलता नहीं है। तो बच्चों इस प्रोसेस में हम लोगों ने दो चीज देखा। पहला देखा इनहेलेशन और इंस्पायरेशन। एक बार फिर मैं बतला दे रहा हूं, इनहेलेशन और इंस्पायरेशन में होता क्या है बच्चों, सबसे पहले डायफ्राम डाउनवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और साथ साथ इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं लेटरली वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण इस रिब केज का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाता है और प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। उसके कारण एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है और हमारा लंग्स जो है फूल जाता है और हमारा जो चेस्ट कैविटी है और ये एक्सपेंड हो जाता है। अब इसका अपोजिट एक्सेलेरेशन में क्या होगा बच्चों, जब ये डायफ्राम जो नीचे गया था वो ऊपर की ओर आएगा और जो मसल्स लेटरली कॉन्ट्रैक्ट किए थे, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए थे ना, अब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाएंगे। तो जब वो रिलैक्स होंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, रिब केज का वॉल्यूम डिक्रीज होगा और एयर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो हम सब जानते हैं कि एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड चेस्ट गेट रिलैक्स एंड चेस्ट डज नॉट एक्सपेंड। तो बच्चों ये हमारा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म है और ऑलरेडी हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस को पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने ये स्टडी किया कि हमारे बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन कैसे होता है, व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो ये मैकेनिज्म को हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। वैसे बच्चे जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।